everyone, I am Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I'm going to start with one more structure of operating system, that is layered structure of operating system. So let's start with it. Here is the general requirement that we need for various structures. We have already done all these statements. So I am directly start with the layered structure. So let's start with it. So what we mean by layered structures, and it is given by whom? So basically, this layered structures it is developed by Dijkstra and Powell. In scientists ने layered structure को developed किया था. And second point is to eliminate the disadvantages of simple structure from MS-DOS and monolithic structure from Unix. A layered structure comes into the picture. So what we think over here, what are the disadvantages in a simple structure and what are the disadvantages in monolithic structure that is overcome by this layer structure. So in simple structure, if you remember, simple structure में हमारे पास क्या था कि simple structure के अंदर it is simple structure looks like a layered structure, तो उसमें हर इंडिविजुअल जो लेयर थी वो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर को एक्सेस कर पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम में बहुत जल्दी जो है वो क्रैश आ रहा था. बिकॉज अगर एक भी लेयर के ऊपर हमारा कोई भी एरर अगर होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आपका शट डाउन हो रहा था, बिकॉज इजिली एक्सेसिबिलिटी इज देयर विद द हार्डवेयर लेयर. So that is the major disadvantage of simple structure. And in a monolithic structure में क्या था कि जितनी भी आपकी major functionalities थी वो सारी की सारी major functionality आपके kernel address space पर ही lie करती थी. So जिसकी वजह से यहाँ पर भी अगर एक किसी particularly एक we can say that कि एक resource में या एक particular जो उसका पर्टिकुलर जो फील्ड था, अगर उसके अंदर हमारे पास कोई भी एरर अगर होता था, उसकी वजह से उस एरर को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे कर्नल स्पेस को हमें चेक करना होता था. सो पूरा का पूरा कर्नल स्पेस आपका यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था और यहाँ पे भी पूरा सिस्टम जो आपका क्रैश हो सकता है अगर एक भी एरर अगर हुआ, बिकॉज ऑल द मेजर फंक्शनलिटीज आर प्रेजेंट इन द kernel level only. So these are the disadvantages of monolithic and simple structure. तो इन दोनों disadvantages को overcome करने के लिए जो next structure हमारे पास आया, that is a layered structure. A layered structure is a structure in which the different services of the operating system are split into various layers. अब देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारे पास various services हैं, जितनी भी various functionalities हैं operating system की, उन सब functionalities को एक single space पर ना रखकर उन सभी को layers में divide कर दिया गया है, यानी कि हर individual layer एक different service और different functionality perform करेगी, where each layer has a specific well-defined task to perform. Next point is in this layered structure जो हमारे पास bottom layer होगी, that bottom layer, that is a layer one is the hardware layer जिसको हम hardware layer बोलते हैं, and the topmost layer जो layer n होगी उसको हम user interface layer बोलेंगे, जो कि अभी तक हमने सारे structures में देखा भी है कि जो हमारी topmost layer होती है वो user layer होती है और जो bottommost layer होती है वो हमारी hardware layer होती है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास major functionalities होती हैं जो हमारे पास kernel mode में available रहती हैं. तो same case with this, but यहाँ पर the differences की हमने सारी फंक्शनलिटीज को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है. तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. These layers are so designed that each layer uses the function of the lower layer only. This is the major point of concern because इस structure को इस type से बनाया गया है कि जो upper layer है, जो upper topmost layer है या कोई भी in between layer होती है, वो सिर्फ अपनी lower layer की ही services को use कर सकती है. So that's why जो इसकी implementation है, इसको जो बनाने का तरीका है layer structure को, वो बहुत ही ध्यान में रखकर इसको बनाना पड़ता है, बिकॉज अपर लेयर सिर्फ लोअर लेयर की फंक्शंस को ही या उसकी सर्विसेज को ही एक्सेस कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एग्जांपल लेयर स्ट्रक्चर हमारा जहां यूज होता है, दैट इज अ विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस लेयर स्ट्रक्चर, विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम.
So next we will move towards the diagrammatical view of layered structure. Here we will see कि जो different layers हैं, हर layer किस type की functionality को perform करती है. So basically इस structure के अंदर जो हम layers लेते हैं, we are taking the 6 layers, but it is not necessary कि हर operating system में जहाँ पे भी layered structure आपका use हो रहा है, वहाँ पे सब 6 layers ही हो. It depend upon the ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. बट अगर हम विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे मेजरली यूज किया जाता है, तो वहां पर इट इज रिकमेंडेड दैट द लेयर स्ट्रक्चर इज ऑफ अ 6 लेयर स्ट्रक्चर. So here first of all we are going to make a 6 layers. सर्कुलर फॉर्मेट में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ लेयर्स को. दिस इज लेयर नंबर, आपका लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3. दिस इज लेयर नंबर 4. दिस इज लेयर नंबर 5. एंड दिस इज लेयर नंबर 6. तो अभी हमने बताया कि जो आपकी बॉटम मोस्ट लेयर होती है, दैट इज अ दिस लेयर, ये वाली लेयर की मैं बात कर रही हूँ. सो वी कॉल्ड इट एज अ लेयर 1. लेयर 1. तो ये जो आपकी बॉटम मोस्ट लेयर होती है, दिस लेयर इज नोन एज अ हार्डवेयर लेयर. इस लेयर को बोला जाता है हार्डवेयर लेयर. ठीक है. और जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, दिस लेयर, दिस टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज अ, इसका पहले नाम हम दे देते हैं, इट इज अ लेयर नंबर 6. और दैट इज एप्लीकेशन लेयर, और वी कैन से दैट यूजर प्रोग्राम लेयर. यूजर प्रोग्राम लेयर. ठीक है. अब इन बिटवीन जो जितनी भी लेयर्स होती हैं, उनको हमें बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है, बिकॉज अपर लेयर जो है वो सिर्फ लोअर लेयर की ही फंक्शनलिटी को यूज कर सकती है. दैट्स वाई जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको बहुत ही ध्यान में रखकर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, बनाना होता है. सो द सेकेंड लेयर जो हमारे पास लेयर नंबर 2 है, लेट वी कॉल इट एज अ सीपीयू शेड्यूलिंग लेयर. दिस इज अ लेयर नंबर 2. So this is a layer 2, and we called it as a CPU scheduling layer. CPU scheduling layer. Okay, now this is a layer number 3. This is a layer number 3, and we called it as a memory management layer. Memory management layer. Okay. Now this is the layer number 4. Layer number 4, and we call it as a, let me call it as a process management layer. Process management layer. Okay, now we are having a layer number 5. Layer number 5, and we called it as a input output buffer. Input output buffer. There. So here in this diagram, we can see that जो आपकी layer 6 है, user program layer, it can access the services or functionalities of layer 5 only. और layer 5 हमारी कौन सी है? input output buffer layer. It means we are having a buffer, एक memory location है जहाँ पर हमारी various files store होंगी, या कोई भी जो extra file हमें चाहिए है, कुछ भी input output device हमें चाहिए है, तो वो सारा हमारे पास इस layer पर ही होगा. सो यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है? यूजर की रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम का कोड करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है कि उसको एक मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है, या फिर कोई उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए होता है. सो आई थिंक द लेयर 6 हैव ऑल द जो उसको जितनी भी सर्विसेज उसको चाहिए है, it will provided by the layer number 5. और layer number 5 can access the functionality of layer number 4, that is a process management layer. कि जितनी भी प्रोसेसेस आ रही हैं हमारी लेयर नंबर 5 से, उन लेयर्स को, उन प्रोसेसेस को जो मैनेज करने का काम है वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर करता है. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ लेयर नंबर 3, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट लेयर. अब जितनी भी प्रोसेसेस हमारी आई हैं, ऑब्वियस बात है कि दे रिक्वायर सम मेमोरी स्पेस. अब वो किस मेमोरी स्पेस पर जाकर स्टोर हो रही हैं, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट लेयर. देन ऑन द सेकेंड लेयर वी आर हैविंग अ सीपीयू शेड्यूलिंग लेयर. अब यहाँ पर जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू एक उन्होंने मेमोरी स्पेस एक्वायर तो कर लिया है, बट नाउ देयर इज अ टर्न टू रन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और अ प्रोग्राम. तो उसके लिए वी आर हैविंग अ सीपीयू शेड्यूलिंग लेयर, जो कि हमें ये बताएगा कि किस प्रोसेस को पहले रन करना है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग प्रोसेसेस. वी आर हैविंग अ वेरियस शेड्यूलिंग टेक्निक्स. तो वो सब शेड्यूलिंग टेक्निक्स जो होंगी हमारी सीपीयू
शेड्यूलर लेयर में ही आती है। देन वी आर हैविंग अ लेयर वन, दैट इज अ हार्डवेयर। अब इसके बाद जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगी, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा हमारा हार्डवेयर पार्ट के साथ। सो हियर वी कैन सी दैट कि जो भी अपर मोस्ट लेयर है, उस उसके जो नीचे वाली लोअर लेयर है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है अपर लेयर की, वो लोअर लेयर फुलफिल कर पा रही है। सो यहाँ पर बहुत ध्यान से हमें इन लेयर्स को जो है रिप्रेजेंट करना होता है। सो दिस इज द डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन एनालिसिस ऑफ दिस लेयर स्ट्रक्चर। कि अभी जो मैंने बात किया कि जो इस लेयर स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द वेरियस रूल्स रेगुलेशंस फॉर मेकिंग दैट लेयर्स। So here is the whole operating system is separated into several layers, that is from layer 1 to n जो अभी हमने represent किया। Each of the layers must have its specific function to perform. There are some rules in the implementation of the layers as follows. अभी ये डिस्कस हुआ था कि जो वेरियस लेयर्स होती हैं, ऑल दी लेयर्स हैव इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। अब इन प्रॉपरली इन फंक्शंस को, किस फंक्शंस को किस लेयर पर डालना है, इसकी इंप्लीमेंटेशन की जो रूल्स हैं, दैट वी विल डिस्कस। So the rule number 1 is the outermost layer must be a user interface layer। जो सबसे outer की layer होगी, यानी कि layer number n की अगर हम बात करें तो वो layer आपकी user interface layer होगी। and the innermost layer must be a hardware layer। so innermost layer को हमने यहाँ पे represent किया था layer number 1 से, तो layer जो 1 होगा वो आपकी hardware layer ही होगी। and rule number 3 is a particular layer can access all the layers present below it but it cannot access the layers present above it। तो जो आपकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो सिर्फ अपनी लोअर लेयर्स की ही फंक्शनैलिटी को होल्ड अप कर सकती है, अपने से अबव वाली लेयर्स की फंक्शनैलिटी को होल्ड अप नहीं कर सकती है। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, जहां पर हमने स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, तो अगर हमने देखा हो, अभी हम ये कह रहे थे कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सिर्फ अपनी लोअर लेयर की फंक्शनैलिटी को ही यूज कर सकती है, बट देयर आर वेरियस लो और भी लोअर लेयर्स यहाँ पर हैं। सो अगर लेयर नंबर 6 को लेयर नंबर 4 की फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो वो 6 वाला जो लेयर है वो पहले लेयर नंबर 5 पर आएगा। देन जो लेयर नंबर 5 है वो उसके अंदर कुछ ओवरहेड को ऐड कर देगी। ओवरहेड एडअप होने के बाद देन इट कैन मूव टूवर्ड्स द लेयर नंबर 4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बिकॉज अगर लेयर टू लेयर हमें जंप करना है और लेयर नंबर 6 को 4 की फंक्शनलिटी को यूज करना है तो यहाँ पे ओवरहेड कुछ जनरेट होगा। वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेयर, बिकॉज ऑफ ओवरहेड जो हमारा मेमोरी स्पेस है वो ज्यादा जो है यूज होगा। जो सीपीयू टाइम है वो हमारा बढ़ जाएगा। वेरियस जो यहाँ पर लैकिंग है वो हमें दिखेगी। Thus, next point is thus if the user layer wants to interact with the hardware layer, user layer क्या है आपकी topmost layer और hardware layer क्या है आपकी bottommost layer, then the response will be traveled through all the layers। जो अभी हमने डिस्कस किया, user layer क्या है आपकी user layer number 6 और hardware layer क्या है आपकी layer number 1। तो अगर इन दोनों layers को आपस में interact करना है तो पहले layer number 6 5 से interact करेगी, then layer number 5 4 से interact करेगी, then layer number 4 3 से interact करेगी, then layer number 3 2 से इंटरेक्ट करेगी, उसके बाद जो 2 है वो आपकी 1 से इंटरेक्ट करेगी। तो ट्रैवल उसको पूरा का पूरा जो है ट्रैवल करना पड़ेगा लेयर बाय लेयर, जिसकी वजह से हर लेयर पर आपका ओवरहेड जनरेट होगा। Next point is each layer must be designed and implemented such that it will need only the services provided by the layer below it। ये पॉइंट अभी डिस्कस हुआ कि हमें इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है, डिजाइन करना है लेयर स्ट्रक्चर को कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको सिर्फ अपनी लोअर लेयर की ही फंक्शनैलिटी नीडेड हो। क्योंकि अगर वो अगर लेयर नंबर 6 को 4 या 3 या 2 किसी की भी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, देन इट कैन वो यूज कर सकता है, बट ओवरहेड यहाँ पे जनरेट होगा। सो दीज आर द वेरियस रूल्स। Now next we will move towards the advantages of layer structure। So here is the first advantage, it is easy to construct। easy to construct क्यों है? Because it is a layering structure and it is defined कि हर layer पर किस functionality को डालना है, तो there is a no mashup। यहाँ पे कोई भी जो mess है वो नहीं होगा, mess up कोई कुछ भी नहीं होगा। So it is very easy to construct। नेक्स्ट इज इजी टू डिबग। इट मीन्स अगर किसी भी पर्टिकुलर लेयर पर कोई एरर जनरेट होता है, लेट्स सपोज कोई सीपीयू का एरर आया, तो वी नो दैट कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो हमारी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, किस लेयर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो डायरेक्टली उसी लेयर पर जाकर एरर को जो है हम वहाँ पे वी कैन डू द डिबगिंग। सो इट इज इजी टू डिबग।
इजी टू अपडेट। अगर किसी भी पर्टिकुलर लेयर की फंक्शनैलिटी को हमें अपडेट करना है तो हम उस पर्टिकुलर लेयर पर ही जाएंगे। वी डोंट हैव एनी नीड टू डिस्टर्ब द होल स्ट्रक्चर, उसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलर लेयर पर जाकर जो भी फंक्शनैलिटी हमें अपडेट करनी है वी कैन, हम उसे अपडेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इजी टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी है बिकॉज रेंडमली चेक किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी लेयर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है और वो फंक्शन आपका प्रॉपरली उस लेयर पे परफॉर्म हो रहा है या कि नहीं। तो हमें लाइक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के अंदर पूरे के पूरे कर्नल को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है, उसको पूरे कर्नल को मेंटेन करने की नीड नहीं है। वी हैव टू मेंटेन ओनली द पर्टिकुलर लेयर, सो दैट इज द एडवांटेज। Next is this design promotes modularity as each layer performs only the task it is scheduled to perform. So it is a modular in nature because हर particular layer एक particular task ही perform कर रही है। So अगर in future हमें किसी particular layer की need नहीं है या हमें कोई layer add up करनी है then we can. So we can say that it is a modular structure as well. नेक्स्ट इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर। दिस इज द मेन एडवांटेज। कोई भी लेयर की जो एक्सेसिबिलिटी है हार्डवेयर के साथ वो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लाइक इन द सिंपल स्ट्रक्चर में क्या था, कोई भी लेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती थी जिसकी वजह से हार्डवेयर आपका क्रैश हो रहा था बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ एनी एरर इन एनी लेयर। सो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। The hardware layer is the innermost layer present in the design, so a user can use the services of hardware but cannot directly modify or access it, unlike the simple system in which the user had direct access to the hardware. यहाँ पर upper layer user layer can access the functionality of a hardware layer but not directly. तो directly अगर नहीं accessibility है तो कोई भी particular layer उस layer को modify नहीं कर सकती है. So that is the advantage of this layer. Next we will move towards the disadvantages of layer structure. So here is the first one. It is a complex and careful implementation is there. Why it is known as complex? Because upper layer से lower layer की ही functionality को use कर सकती है. So जो इसकी implementation procedure है उसको बहुत ही carefully हमें design करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि जो upper layer है वो अपनी lower layer की functionality को use ना कर पाए. So it is बहुत ध्यान से इसको implement करना पड़ता है जिसकी वजह से ये complex in nature हो जाता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। वाई इट इज स्लोअर इन एग्जीक्यूशन? बिकॉज अगर लेयर नंबर 6 को लेयर नंबर 4 की फंक्शनलिटीज को एक्सेस करना है तो पहले वो लेयर नंबर 5 पर आएगा, वहां पे आपका एक ओवरहेड जनरेट होगा जिस ओवरहेड की वजह से जो सीपीयू का टाइम है वो आपका एक्सीड कर जाएगा। जो आपका सीपीयू का टाइम है, सीपीयू का जो टाइम है वो आपका एक्सीड कर जाएगा। अगर सीपीयू टाइम आपका एक्सीड कर रहा है तो प्रॉपर टाइम पर हमें जो रिजल्ट चाहिए, लेट्स सपोज कि विदाउट ओवरहेड अगर हमारा रिजल्ट 2 मिनट्स में जनरेट हो सकता है बट ड्यू टू द ओवरहेड वो जो रिजल्ट है वो हमारा 3 मिनट्स में जनरेट हो रहा है तो इट बिकम स्लोअर। तो यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो आपकी स्लोअर हो जाती है। Next disadvantage is lack of communication. Here lack of communication means कि जो भी topmost layer है वो जो भी layers हैं आपकी वो सिर्फ अपनी lower layer की ही functionality को use कर सकती हैं. It means अगर layer number 5 को layer number 1 से interact करना है तो it cannot इंटरेक्ट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट आपकी नहीं कर सकती है। पहले लेयर नंबर 5 को 4 से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, देन 4 3 से इंटरेक्ट करेगी, देन 3 2 से करेगी, देन 2 से 1 करेगी। इट मींस जो मैसेज 5 को 1 को डायरेक्ट कन्वे करना था अब वो मैसेज डायरेक्ट कन्वे ना होकर पहले वो मैसेज 4 को कन्वे हो रहा है। अब 4 लेयर नंबर 4 वो मैसेज 3 को कन्वे कर रही है, नेक्स्ट वो लेयर नंबर 3 4 2 को कन्वे कर रही है एंड देन लेयर नंबर 2 1 को कन्वे कर रही है। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। Next point is for modification data need to be modified and passed on at each layer which adds overhead to the system. It means अगर हमें कोई भी modification करनी है, किसी भी data में modification की need है तो जो भी modification आपकी done हो रही है वो modification हर layer पर जाएगी।
लेट्स सपोज यूजर ने कोई प्रोग्राम रन किया, बट आफ्टर रनिंग दैट प्रोग्राम उसको कुछ नीड हुई कि कोई न्यू फाइल मुझे एडअप करनी है, तो वो उसने कुछ डाटा एडअप किया। अब वो डाटा जो एडअप किया वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब जितना भी हमने एक्स्ट्रा डाटा एडअप किया है वो लेयर बाय लेयर आपका कन्वे होगा, और उसके बाद ही आपका वो बॉटम मोस्ट लेयर तक पहुंचेगा। सो ओवरहेड यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका अकर होता है। नाउ केयरफुल प्लानिंग ऑफ द लेयर्स इज नेसेसरी, एज अ लेयर कैन यूज ओनली लोअर लेवल्स लेयर्स ओनली। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। These are the references which I considered for this lecture. Thank you.